Hello everyone, so today we are going to discuss unit 2, that is presentation skills. So the first question rises, what is presentation skills? Presentation ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ presentation ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ skills required ਨੇ, that is ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ hand movements ਕੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ body language ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ voicing ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ nervous ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ slides ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ use ਕੀਤੀਆਂ presentation ਵਿੱਚ, that is all about your presentation skills. So the skills required in the presentation is known as presentation skills. ठीक है, so the first topic comes कि presentation ਹੁੰਦਾ ਕੀ है, presentation skills की है. It is a presentation is essential for the students, researchers and working managers in today's fast moving business environment. Obviously कहते हैं चाहे वो student है, चाहे वो researcher, चाहे कोई manager है, worker manager जो भी है, आज ਦੇ टाइम ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ এনवायरमेंट ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਕਿੱਲਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿੱਲਸ ਬਹੁਤ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੁੰਦੇ ਹੈ. ਇਫ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਫੈਕਟਿਵ, it creates a good impression about the speaker and it clearly communicates the information. Obviously they are saying कि अगर मेरी प्रेजेंटेशन इफेक्टिव होएगी, देखो अगर मैं हर चीज़ जो मैं दसना चाहनी है, जो मेरा मोटिव है, और मैं अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर रही हूँ, इंप्रेसिव वे ना कर रही हूँ, इफेक्टिव वे ना कर रही हूँ, ठीक है, सो वो अच्छा इंप्रेशन पाएंगे, गुड इम्पैक्ट पाएंगे मेरे लिसनर्स ऊपर. मोर ओवर जो मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहनी हूँ मैं क्लियरली कम्युनिकेट कर पाऊँगी, ठीक है. सो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਸਲਾइड्स यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, मेरा की इफेक्ट्स ने, मैं की कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया है, ठीक है, तो मेरी प्रेजेंटेशन दे होगी, ठीक है. ਹੁਣ जो प्रेजेंटर है, जो स्पीकर है, वो किमें बोल रहा है, वो अपनी थॉट्स, अपने आइडियाज़ किमें प्रेजेंट कर रहा है, ਉਹਦੀ वॉइस की किमें दी है, ठीक है, पिच किमें दी है वॉइस की, ਉਹਦਾ बॉडी लैंग्वेज की है, ਉਹਦਾ आई कॉन्टैक्ट किमें हो रहा है. सो ऑल इट कवर्स इन प्रेजेंटेशन स्किल्स. सो the presentation also reveals the attitudes of the personality of the speaker, that is confidence किन्ना fluency है, किन्ना style है, and how is conducting the discussion and debate. So ये सारी चीज़ां किहदे विच आंदियां ने कि जो मेरी जो speaker है ਉਹਦੀ personality किवें दी और मतलब ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੰਨਾ confident है, ठीक है, की confidence ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, confident ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ fluently ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੋਲੋ, ਜੀ fluency ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ style ਕਿਵੇਂ conduct ਕਰੇ, ठीक है, मतलब monotonous boring नहीं होना चाहिए, थोड़ा impressive वे ना होना चाहिए. all comes in presentation skills. So next comes the point of difference between the business presentation and public speaking, ठीक है. so basic difference की है, जो business presentation ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ audience ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, presenter ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, speaker ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, दैट इज एक होमोजीनियस इक्को तरह की ऑडियंस होएगी, या तो स्कूल के स्टूडेंट्स होंगे, या सारे ही कॉलेज के होंगे, या तो सारे ही प्रोफेशनल होंगे. दैट मीनस होमोजीनियस इक्को तरह की ऑडियंस है, दैट इज़ योर बिजनेस प्रेजेंटेशन. अगर मैं कोई चीज़ मे बी मैं कोई प्रोडक्ट एग्जाम्पल हो सकती है, मैं प्रोडक्ट लॉन्च करना है, ठीक है, सो मैं प्रोडक्ट कोई लॉन्च कर रही हूँ तो मैंने पता है मैं किहड़ी ऑडियंस को जाना है, दैट इज़ योर बिजनेस प्रेजेंटेशन. यू नो द मोटिव, तुहानूं मोटिव भी पता तुहाडी ऑडियंस की इहदे विच होमोजीनियस है, इक्को तरह की है, ठीक है. नैक्सट कम्स पब्लिक स्पीकिंग. पब्लिक स्पीकिंग एग्जाम्पल की आती है, ये की होंगे जो पॉलिटिशियंस बोलते हैं, जो हैट्रोजीनियस की होंगी है पब्लिक, बिकॉज ये मिक्स तरह की ऑडियंस होगी, दैट इज़ जो हैट्रोजीनियस, ठीक है. सो ये हैट्रोजीनियस पब्लिक होएगी तो ये यूजली एग्जाम्पल आती थोड़ी पॉलिटिशियंस जो बोलते. सो दैट इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन बिजनेस प्रेजेंटेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग. So next topic comes features of presentation. पहली चीज़ है a presentation is not a lecture. So पहली point आता है कि ये lecture नहीं होता, because classroom में अगर जो teacher स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट कर रहा है वो लेक्चर होंगे, बिकॉज स्टूडेंट साइमल्टेनियसली टीचर्स तक क्वेश्चंस पूछते हैं. बट इन प्रेजेंटेशन अगर स्पीकर बोलेगा सारा पहले तो सिर्फ स्पीकर ही बोलता, स्पीकर के खत्म होने तो बाद ही जो लिसनर्स जो क्वेश्चंस पुट कर सकते. सो जो लेक्चर होंगे वो 2-वे कम्युनिकेशन होंगे, दैट इज़ अ लेक्चर इज़ आइडली अ 2-वे कम्युनिकेशन, ठीक है. सो जो लेक्चर होंगे वो 2-वे कम्युनिकेशन प्रोसैस है, बट थोड़ा प्रेजेंटेशन है वो 1-वे कम्युनिकेशन है, बिकॉज ये इनिशियली 1-वे बिकॉज जो क्वेश्चन खत्म मेरी स्पीच खत्म हो जाएगी स्पीकर की, उसके बाद ही लिसनर्स क्वेश्चन पूछते हैं. दूसरा द फोकस की होंगे, मेरा फोकस इज परस्यूडिंग द लिसनर्स टू बाय द आइडियाज दैट आर शेयर, ठीक है. ऑब्वियसली अगर मैं कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है या मैं किसी इंस्टीट्यूट की एडवर्टाइजमेंट करन गई है तो मेरा मोटिव की है कि मैं अपने ऑडियंस को ये परसुएट करना है, उन्होंने ये मोटिवेट करना है कि मेरा प्रोडक्ट खरीदन, ठीक है. अगर मैं न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है दैट मीन्स मेरा मेन फोकस की कि मेरा प्रोडक्ट खरीदा. अगर मैं इंस्टीट्यूट की एडवर्टाइजमेंट करने गई हूँ तो मेरा मेन मोटिव ये है कि जो मेरी पब्लिक है, ठीक है, जो भी मेरी इंटरेस्टेड ऑडियंस होगी वो मेरे इंस्टीट्यूट आके भी कोई भी कोर्स में एडमिशन लैन. सो मेन फोकस यही होंगे प्रेजेंटेशन का स्लाइड्स बनाने का कि मैं अपनी पब्लिक को परसुएट करना कि वो मेरे ही
प्रोडक्ट लैन या मेरा ही इंस्टीट्यूट जो भी मेरी एग्जाम्पल जिस वास्ते भी मेरा कोई भी एम है जिस वास्ते मैं प्रेजेंटेशन दे रही हाँ तो वो मेरा एम पूरा होना चाहिए। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन इज़ अ वैल डिफाइंड फॉर्मेट ऑब्वियसली अ वैल डिफाइंड फॉर्मेट की होएगा ये की होंगे वैल डिफाइंड फॉर्मेट की कस्टमर्स जो है मैं प्रेजेंटेशन तैयार की थी ये मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट होएगा फिर मेरा मेन बॉडी पार्ट होएगा फिर मेरी कंक्लूजन होएगी दैट मीनस एक की है विच वैल डिफाइंड फॉर्मेट तैयार होंगे। नेक्स्ट पॉइंट कम्स अ गुड प्रेजेंटेशन कवर्स द फॉलोइंग आस्पेक्ट अच्छी प्रेजेंटेशन विच की आस्पेक्ट्स कवर होने चाहिए ने की फॉलोइंग पॉइंट्स ये गुड पॉइंट्स गुड फीचर्स इंक्लूड होंगे है। पहला देयर शुड बी क्लीयर स्ट्रक्चर विद एन इंट्रोडक्शन डिस्कशन एंड दैट मीनस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि की होंगे है कि ये क्लीयर डिस्कशन एक क्लीयर स्ट्रक्चर होना चाहिए इंट्रोडक्शन पार्ट होएगा इंट्रोडक्शन यही होएगा कि मैं की दसना है मेरा मेन मोटिव की है मेरा टॉपिक याद है प्रेजेंटेशन का ठीक है और फिर मैं डिस्कशन दैट मीनस मेन बॉडी सारा को डिस्कस करूँगी ठीक है। अगर मैं अपनी अगर एग्जाम्पल अगर मैं लवा अगर मैं एडवर्टीजमेंट अपने इंस्टीट्यूट की करन गई है ठीक है तो पहली चीज़ मैं यही दसूँगी कि मैं मेरा इंस्टीट्यूट जो है वो किस किस कोर्सेज डील करता है ठीक है। मैं अपनी इंट्रोडक्शन अपनी इंस्टीट्यूट की सारी डिस्कशन दसूँगी डिस्क्रिप्शन दूँगी मेरे इंस्टीट्यूट इतने है उन्होंने इन्ने साल हो गए दैट इज़ इंट्रोडक्शन पार्ट। डिस्कशन में मैं यही दसूँगी कि मेरे किन्ने कोर्सेज अवेलेबल है इतने तो किन्ने कोर्सेज जो अवेलेबल है उस किन्ने स्टूडेंट्स एनरोल ने ठीक है तो मेरा रिजल्ट की रहा पास का ठीक है तो मैं हुण किहड़ा नवा कोर्स एड ऑन करना चाहती जिस मैंने होर एडमिशनस चाहिए दैट इज़ योर डिस्कशन पार्ट जो थोड़ा प्रेजेंटेशन का मेन पार्ट होंगे। लास्ट कम्स योर एंडिंग ठीक है एंड में तुम अपने कोई पास अपने रिकॉर्ड शेयर कर दो या कोई भी एंडिंग दैट इज कंक्लूजन का यही दसना कि मेरा मेन की है कि तुम बात बाद मेरी इंस्टीट्यूट एडमिशन लैने। सो एक क्लीयर स्ट्रक्चर होना चाहिए फैक्ट्स एंड फिगर्स यूजली आप अगर टेबल ग्राफ से चार्ट से बनावांगे कुछ मैं शो करूँगी अगर मैं अपना पास डाटा शो करना है या मेरे किन्नी अचीवमेंट्स ने या मेरे स्टूडेंट्स किन्ने एनरोल ने पास स्टूडेंट्स किन्ने ने मैं सारा चीज़ अपना टेबल ग्राफ से चार्ट से मैं शो करा। नेक्स्ट डिफरेंट कलर्स लगावा ठीक है अपनी प्रेजेंटेशन होर इफेक्टिव बनाने वास्ते मैं की करना है डिफरेंट कलर्स यूज करने। नेक्स्ट प्रेजेंटर शुड शो एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑडियंस नीड्स एंड लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग वाइल डिस्कसिंग हिज और आइडियाज ठीक है। प्रेजेंटर अपना बोल के चला जाए उन्होंने किसी को समझ ना आए ਇਹਦਾ भी कोई यूज़ नहीं है। सो कह रहे हैं कि जो प्रेजेंटर है उन्होंने ऑडियंस की नीड्स उन्होंने लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग में समझना चाहिए उस अकॉर्डिंग ही सब कुछ प्रेजेंट करना चाहिए। सो ह्यूमरस एंड एंसीडोट शुड ऑफन एम्प्लॉय टू क्रिएट अ गुड रिलेशनशिप। सो ह्यूमर इज बेसिकली योर फनी क्वालिटी उन्होंने ह्यूमर कहने हैं एंड एंसीडोट मतलब कोई भी आप कोई भी शॉर्ट या इंटरेस्टिंग स्टोरीज दस देनी है ठीक है अपने प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाने वास्ते कोई मैं अपनी कोई स्टोरी शेयर कर ली या एक ह्यूमरस इन्वायरमेंट क्रिएट करता कि उत्थे लोग जो है उन्होंने वास्ते मोनोटनस ना हो प्रेजेंटेशन अटेंड करना उन्होंने वास्ते अच्छा लाइवली इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन शुड बी गिवन सीरियस अटेंशन ठीक है। लास्ट विच जो भी होएगा आप क्या कि वो लेक्चर नहीं है बट एट द एंड ठीक है नालों नाल कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा बट द एंड ऑफ प्रेजेंटेशन वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो कह रहे कि क्वेश्चनस ਨੂੰ ਆਪਾਂ सीरीयस अटेंशन देनी है तो आप एक एसेंशियल पार्ट मनना अपने प्रेजेंटेशन का कि जो मेरे लिसनर्स ने मैनू की क्वेश्चनस पुट करे। सो लास्ट में ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन राउंड जरूर होना चाहिए 10 to 15 मिनट्स का। नैक्सट कम्स एलीमेंट्स ऑफ प्रेजेंटेशन एलीमेंट्स की ने प्रेजेंटेशन के बेसिकली ये 3 एलीमेंट्स आते हैं जो असं प्रेजेंटेशन में इंक्लूड करांगे। ये आप प्रेजेंटर्स एनालिसिस करांगे। नैक्सट कम्स ऑडियंस एनालिसिस एंड थर्ड कम्स योर प्रेजेंटेशन डिजाइन ठीक है। प्रेजेंटर्स एनालिसिस मतलब जो तुहानू प्रेजेंटेशन देगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एनालिसिस ਵਿੱਚ ਕੀ आएगा एज अ प्रेजेंटर उन्हें अपने अपने किहड़े आस्पेक्ट्स ਨੂੰ कवर करना है प्रेजेंटेशन देने तो पहला एक्चुअल प्रेजेंटेशन देने तो पहला की आस्पेक्ट कवर करेगा। सो पहली चीज़ आएगी आइडेंटिफाई योर पर्पस की उन्होंने देखना है। एनालाइज योर ऑडियंस को एनालाइज करेगा फिर आइडेंटिफाई द नीड क्यों उन्हें प्रेजेंटेशन देनी वो देखेगा। कोलेट मीन्स कलेक्ट योर इन्फॉर्मेशन फिर डिजाइन योर कम्युनिकेशन में किमें अपनी प्रेजेंटेशन देनी वो टाइम की मेरा होएगा ज़्यादा वड्डी नहीं होनी चाहिए ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं होनी चाहिए। डिसाइड ऑन दी विजुअल एड मतलब मैं की पिक्चर्स की ग्राफ्स की चार्ट्स यूज़ करने एंड स्टडी लोकेशंस में कितने जाना है मतलब मेरे इन्वायरमेंट की होएगा स्कूल कॉलेज और विद एनी प्रोफेशनल प्लेस तो हमें चीज़ करनी है ठीक है। दैट इज़ योर प्रेजेंटेशन एनालिसिस जो प्रेजेंटेशन दे रहा है ठीक है उन्हें इस चीज़ का ध्यान रखना है। नैक्सट कम्स योर ऑडियंस एनालिसिस ठीक है। ऑडियंस एनालिसिस मतलब कि हम किद्दां दी ऑडियंस मैनूं उत्थे मिलेगी दैट इज़ योर ऑडियंस एनालिसिस ठीक है। सो पहले ऑडियंस एनालिसिस विच आएगा कि गेट एन आइडिया ऑफ द नंबर नेचर
नीड्स लेवल ऑफ नॉलेज एंड लाइकली एटीट्यूड ऑफ द ऑडियंस, मतलब किन्ने किस तरह की ऑडियंस होगी, किन्ने मैंबर्स ने उत्थे, किन्ने नंबर ऑफ परसनस उत्थे अवेलेबल होणगे, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਨੀਡਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੈਵਲ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਕਿੰਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕੀ ਆਡੀਅੰਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰੂੰਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਡਿਟਰਮਿਨ ਦ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਹੋਣ, ਜੋ ਸਭ ਉਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਣੀ ਇਜ਼ਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਟਿਲ ਅਨਲੈਸ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲ ਦੂੰਗੀ ਉੱਥੇ ਬਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਪਰਪਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲਣੀ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡੇਬਲ ਹੋਵੇ। ਨੈਕਸਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦ ਆਡੀਅੰਸ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। नेवर कंसिडर योर ऑडियंस टू बी अ हॉस्टाइल ग्रुप, हॉस्टाइल मतलब कि राइवल, ठीक है। आप ये नहीं समझना कि जो ऑडियंस बैठी हो मेरी की है, मेरी राइवल है, मेरी दुश्मन है, नो, ठीक है। तुहाडे ये सोच के कभी आप प्रेजेंटेशन देवांगे तो साडी प्रेजेंटेशन कभी भी इफेक्टिव नहीं होएगी। ऑलवेज लुक फॉर समथिंग स्माइलिंग फेसेस अमंग द लिसनर्स, ऑब्वियसली स्माइलिंग फेस देखांगे ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡਅਪ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹ ਫੇਸਿਸ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਟਾਈਮ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਾਈਲਿੰਗ ਫੇਸ ਦੇ ਰਹੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮੇਕ ਆਈ ਕੰਟੈਕਟ, ਆਈ ਕੰਟੈਕਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਆਈ ਕੰਟੈਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਰਿਮੈਂਬਰ ਦ ਪਰਪਸ ਫॉर ਵਿਚ ਯੂ ਆਰ ਐਡਰੈਸਿੰਗ योर ऑडियंस, एंड हमेशा ये याद रखना कि साडा पर्पस की है प्रेजेंटेशन देने का। नैक्सट कम्स डिजाइनिंग योर प्रेजेंटेशन, ठीक है। आप प्रेजेंटर ने अपना एनालिसिस भी कर लिया, ऑडियंस एनालिसिस भी कर लिया। नैक्सट कम्स डिजाइनिंग योर प्रेजेंटेशन। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪਾਰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲ them what you're going to tell them, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪਾਰਟ 3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਟਸ਼ੈਲ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮੇਨ ਬੋਡੀ, ਮੇਨ ਬੋਡੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਕਮਸ योर ਕੰਕਲੂਜਨ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕੰਕਲੂਜਨ ਆਪਾਂ ਸਮ ਅਪ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮ ਅਪ ਕਰ ਦੇਣਾ 2 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਕਮਸ योर ਕੁਐਸਚਨ ਐਂਡ ਆਂਸਰਸ, ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੈਸ਼ਨ ਆਪਾਂ 10 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ 10 ਜਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਔਨ ਰਾਊਂਡ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਮਸ 10 ਸਟੈप्स टू अ सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन, ठीक है। अगर अपन अपनी प्रेजेंटेशन सक्सेसफुल बनानी है, ठीक है, सो उस केस ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ 10 ਸਟੈप्स बनते हैं, ठीक है। सो ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਟ ਗਿਵਨ ਹੈ 10 ਸਟੈप्स ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਕਸ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਨਟਸ਼ੈਲ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਕੰਸੀਡਰ ਦ ਓਕੇਜ਼ਨ ਐਂਡ ਦੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੰਸੀਡਰ ਦੀ ਓਕੇਜ਼ਨ ਐਂਡ ਦੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ। ਸੋ ਇਹੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਇਲੈਬੋਰੇਟਿਵ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 10 ਸਟੈप्स टू सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੰਸੀਡਰ ਦੀ ਓਕੇਜ਼ਨ ਐਂਡ ਆਬਜੈਕਟਿਵ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ प्रोडक्ट न्यू लॉन्च करना है, तो ओकेजन की मैं न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रही हूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव की है कि मैं वध तो वध ऑडियंस अपनी कस्टमर्स बिल्डअप करने हैं, ठीक है, मैं अपना मार्केट शेयर इंक्रीज करना है। सो ऑब्जेक्टिव में ध्यान से रखते पहले आप ये चीज़ देखना कि मेरा ओकेजन की है, मैं क्यों प्रेजेंटेशन देने जा रही, तो मेरा उस चीज़ ਲਈ ऑब्जेक्टिव की है। नैक्सट पॉइंट कम्स मेक एंड ऑडियंस एनालिसिस। सो वट इज़ ऑडियंस एनालिसिस, आप यही देखना कि किस तरह की ऑडियंस है, उन्होंने एटीट्यूड की है, उन्होंने नेचर की है, नीड्स की है, उन्होंने नॉलेज किस चीज़ बारे है। सो आप ये सारा कुछ ऑडियंस एनालिसिस ऑलरेडी डिस्कस किया, वही ये आएगा कि आप सारी ऑडियंस बारे एनालिसिस ये करांगे प्रॉपर। उस तरह की ही प्रेजेंटेशन बनावांगे कि उन्होंने लैंग्वेज कि समझ आती है, उन्होंने एटीट्यूड की है, बिहेवियर की है, नीड की है, ठीक है, नॉलेज की है उन्होंने। सो ऑल कम्स इन योर ऑडियंस एनालिसिस। थर्ड पॉइंट कम्स गेट एक्वेंटेड विद द एनवायरनमेंट और लोकेशन, ठीक है। आप कित्थे जा रहे हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट तुहाडा की है, ठीक है, किद्दां दा रूम है, की सीटिंग अरेंजमेंट है, ठीक है, स्पीकर की पोजीशन कित्थे होएगी, कि कित्थे खड़ के उन्हें चीज़ सब कुछ बोलनी है, लाइटने वगैरह वेंटिलेशन पोजीशन की है, तो दैट मीनस आप सब कुछ स्टडी करना है उस लोकेशन बारे भी, उस अकॉर्डिंग आप प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। सो थोड़ा बोलने का उत्थे सिस्टम है प्रॉपरली, अरेंजमेंट है किवें तुसीं बोलोगे, प्रॉपर माइकिंग सिस्टम है या तुसीं विदाउट माइक उत्थे बोलना, उस अकॉर्डिंग तुसीं अपने वैल प्लान करोगे, ठीक है। तुहाडे उत्थे प्रेजेंटेशन का पीपीटीज़ का प्लान है, उत्थे प्रॉपर अरेंजमेंट है, ये सारा आप डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो नैक्सट पॉइंट कम्स डिसाइड द मैनर एंड द मोड ऑफ प्रेजेंटेशन। दैट मीनस आप किस तरह प्रेजेंटेशन अपनी देनी आप वो भी देखेंगे। पहली 3 तरह के आते मोड्स। पहला आ गया रीडिंग, दैट मीनस आप की कर रहे हैं, रीडिंग जो कर रहे हैं आप जो भी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं वो देख के बोल रहे हैं तो नाल आप प्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज़ रीडिंग। नैक्सट कम्स मैमोराइज प्रेजेंटेशन। सो व्हाट इज़ मैमोराइज प्रेजेंटेशन, कि मैंने कोई पुरानी अपनी प्रेजेंटेशन याद है टॉपिक मैं दोबारा बोल रही हूँ, दैट इज़ योर मेमोराइज्ड। एंड नैक्सट कम्स एक्सटेम्परस, दैट मीनस एट द स्पॉट प्रेजेंटेशन। दैट मीनस मैंने कोई भी टॉपिक उत्थे एट द स्पॉट में लगे कि मैंने बोलना चाहिए, मैं उहदे उपर प्रेजेंटेशन देती। सो
तीन तरह के मैनर मोड ऑफ प्रेजेंटेशन आते हैं। सो मैंने देखना पेगा कि मैनू किस तरह की प्रेजेंटेशन बोलनी है, ठीक है। नैक्सट कम्स प्लान आउट दी प्रेजेंटेशन, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ स्क्रिप्ट, ठीक है। ये मैं देखूंगी मेरी प्रेजेंटेशन कितनी वड्डी होएगी, ठीक है। ये मैं देखूंगी फॉर्मेट की होएगा, ओपनिंग पार्ट दैट मीन इंट्रोडक्शन पार्ट होएगा, मिडिल पार्ट दैट इज मेरा मेन बॉडी आएगा, एंड लास्ट कम्स योर क्लोजिंग कि मैं क्लोजिंग की कर दैट इज योर कंक्लूजन आएगा, ठीक है। सो ये मैं तैयार करने की मेरी प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए एंड बहुत ज़्यादा छोटी नहीं होनी चाहिए। सो ए ओपनिंग पार्ट मेरी इंट्रोडक्शन पार्ट आ जाएगा, स्टेटिंग का ऑब्जेक्टिव आएगा, विच क्रिएटिंग अ रैपर मीन्स योर फ्रेंडली रिलेशनशिप विद द ऑडियंस, ठीक है। मैं अच्छा लाइवली इन्वायरमेंट क्रिएट करना होता है, फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करना, एंड ड्राइंग आउट द आउटलाइन ऑफ प्रेजेंटेशन। साथ में इसका ओवरव्यू देता कि मेरी प्रेजेंटेशन है किस बारे। फिर उस मिडल पार्ट थोड़ा मेन बॉडी आता है, एग्जाम्पल आएगी, विजुअल एड्स वगैरह सारा कुछ आएगा, एग्जाम्पल ग्राफ्स आगे, थोड़ी चार्ट्स आगे, एंड लास्ट में थोड़ा एक्सप्लेनेशन, एंड क्लोजिंग में आएगा गिविंग अ क्लियर मैसेज ऑफ द प्रेजेंटेशन, तो किस की दस है वो ये आएगा, ठीक है। समरी आ जाएगी, इनवाइटिंग इंक्वायरीज कोई होंगे वो पूछेंगे, तो लास्ट में थैंकिंग द ऑडियंस आएगी, ठीक है। सो नेक्स्ट कम्स प्रेजेंटेशन ऑफ विजुअल एड्स, हैंडआउट्स एंड फीडबैक फॉर्म्स। विजुअल एड्स यही आगे थोड़ी की आप पिक्चर्स वगैरह की आप ग्राफ्स चार्ट्स यूज करें, हो आगे थोड़े विजुअल एड्स। हैंडआउट्स इस तरह थोड़े पैम्फलेट्स टाइप आते कि आप सब कुछ पर्टिकुलरली क्लीयरली सब कुछ लिख देने शॉर्ट भी कि तुसी किस चीज़ बारे अपना बोलना चाहते, थोड़ी ऑर्गेनाइजेशन किस चीज़ बारे है, वो आगे थोड़े हैंडआउट्स। एंड लास्ट कम्स योर फीडबैक फॉर्म्स, दैट इज कि आप एंड विच हमेशा फीडबैक फॉर्म्स भरवाने कि हाँ ऑडियंस जो मेरा पर्टिकुलर कैंडिडेट ਉਹਦਾ नेम की है, ਉਹਦੀ ईमेल आईडी की है, ਉਹ एजुकेशन ਵਿੱਚ ਕੀ परस्यू कर रहा है, या अगर जॉब ਵਿੱਚ है तो किस जॉब प्रोफाइल ਵਿੱਚ है, वो सारा कुछ फीडबैक फॉर्म ਵਿੱਚ उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब कुछ आप लिखते हैं, ठीक है। नैक्सट कम्स रिहर्स योर प्रेजेंटेशन। जब तक रिहर्स नहीं करांगे सानू प्रेजेंटेशन नहीं पता लगेगी आप कितने लैक कर रहे हैं, ठीक है। वेयर वी आर लैकिंग बिहाइंड ये नहीं पता लगेगा, ठीक है। कोई चेंजेस करने की लोड़ है, ये सारे टाइमिंग एक्चुअल की हो रही है, ये सारा कुछ थोड़ा रिहर्स करने रिहर्सल करांगे ताई तुहानू सारी अपनी डेविएशन सानू पता लगेगा कितने आप लैक बिहाइंड कर रहे हैं। नैक्सट ये थोड़ी होगी, नैक्सट आगे थोड़ा कंसिडर पर्सनल आस्पेक्ट्स। ये तो आप देख लिया कि आप की स्लाइड शो करने की स्लाइड्स लगा रही हैं, की होएगा, कितना थोड़ा इंट्रैक्शन पार्ट होएगा, मेन बॉडी सब कुछ। इस बाद आता थोड़ा पर्सनल आस्पेक्ट्स भी, फिजिकल ते बॉडी लैंग्वेज आस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि थोड़े नर्वस वगैरह सी हो जाने हैं तो किवें आपां करना है, आपां थोड़े नेगेटिव जो नेगेटिव इंपैक्ट शो करते हैं प्रेजेंटेशन की होंगे। एक तो पहली चीज़ ये कि आप आई कॉन्टैक्ट प्रॉपर करना है, ठीक है। सो नर्वस नहीं होना, तो आई कॉन्टैक्ट आप प्रॉपर करना है। सो आप की होंगे की नेगेटिव रेपरीक्यूशंस होंगे, नर्वस कर रहे हैं, ठीक है, आप नर्वस फील कर रहे हैं, एक्सैसिव मूवमेंट कर रहे हैं, आप हैंड में बार बार रब कर रहे हैं, या बार बार अपने फेस माउथ में कवर कर रहे हैं बोलन टाइम, या यूजिंग अ पेन और पेंसिल एंड पॉइंटर्स, ठीक है। पेन और पेंसिल आप एज अ पॉइंट यूज कर रहे हैं, लैक ऑफ आई कॉन्टैक्ट एंड फिजिटिंग इज बेसिकली आप अपने मूवमेंट वगैरह बहुत ज़्यादा कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ नर्वसनेस के कारण आप अगे पीछे हो रही है, हैंड की मूवमेंट बहुत कर रहे हैं, लेग की मूवमेंट बहुत कर रहे हैं, दैट इज योर फिजिटिंग। सो ये थोड़े नेगेटिव इंपैक्ट्स शो करते हैं प्रेजेंटेशन टाइम। नैक्सट कम्स ओवरकमिंग नर्वसनेस। सो कहते अगर आप नर्वसनेस ओवरकम करना, अगर दूर करना है तो आप की कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली पहले आप फ्यू डीप ब्रेथ्स ले सकते हैं इन एंड आउट, ठीक है, मेकिंग हिमसे कंफर्टेबल विद द ऑडियंस। पहली चीज़ की अपने डीप ब्रेथ लो इन एंड आउट, ठीक है। दूसरा मेकिंग हिमसेल्फ हरसेल्फ कंफर्टेबल विद द ऑडियंस, अपने ऑडियंस से ना कंफर्टेबल फील कराओ। बूस्टिंग हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने बिल्डअप करो कि हाँ आई कैन डू इट, ठीक है। डिटर्मिनेशन होएगी तो तुहानू नर्वसनेस घट होएगी। प्रॉपर प्रैक्टिस करो, गिविंग प्रॉपर पॉजेज फॉर रिलैक्सेशन, बहुत फास्ट नहीं बोलना, ठीक है। सो कह रहे कि पॉजेज जब देवांगे तुहानू एक चीज़ रिलैक्सेशन तुहानू मिल जाएगी। मूविंग अबाउट अमंग द ऑडियंस, ठीक है, दैट मीन्स ऑडियंस विच घूमोगे थोड़ा बहुत तुहानू होर मोराल मिलेगा, थोड़ा होर मोराल बूस्टअप होएगा, तुहानू कॉन्फिडेंस मिलेगा। एंड टेकिंग हेल्प ऑफ विजुअल एड्स देवांगे तो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी बन जाएगी। सो नैक्सट लास्ट पॉइंट कम्स मेकिंग द प्रेजेंटेशन डू इट, ठीक है। तुसीं अपने पर्सनल आस्पेक्ट्स में कवर कर लिया, ये ठीक है, ओकेजन देख लिया, मेकिंग ऑडियंस एनालिसिस में कर लिया, इन्वायरमेंट में देख लिया, ठीक है, मोड्स तैयार कर ली किवें करना है, फिर अपनी स्क्रिप्ट तैयार कर ली, फिर तुसीं अपने विजुअल एड्स हैंडआउट्स वगैरह चेक कर ले, ठीक है। सो रिहर्स कर ली प्रेजेंटेशन, पर्सनल आस्पेक्ट्स देख ले। सो लास्ट कम्स योर प्रेजेंटेशन, ठीक है, आप प्रेजेंटेशन आप कर लें, ठीक है। सो डू इट, ठीक है। सो दीज वर ऑल 10 steps to do a successful presentation. Next topic comes 6 great helpers in presentation. That is also same as 10 great helpers. Same होंगे भी, बस एक ही जो अपन ने पॉइंट्स का नेम चेंज करता। पहला पॉइंट आ गया वाई, दैट मीन्स आप पर्पस की है, दैट मीन्स ओकेजन ऑब्जेक्टिव जो आप पहला पॉइंट पढ़िया ये आ गया वाई कि आप कंसिडर करना सारा से किस लिए प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ये स्पीकर को क्लीयर होना चाहिए अपना ऑब्जेक्टिव ते ओकेजन, ठीक है। नैक्सट पॉइंट कम्स वेयर एंड हु, मतलब मेरे लिसनर्स की नहीं, दैट इज योर
कि मेरे लिसनर्स ਕਿਹੜੇ ਹੈ ਸਕੂਲਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਾਲਜ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਡੀਅੰਸ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੂ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਕਮਸ ਵੇਅਰ ਐਂਡ ਵੈਨ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਕਮਸ योर व्हाट मेरा सब्जेक्ट मैटर की है कि मैं मैसेज देना है मैं की कम्युनिकेट करना चाहती हूँ दैट इज़ योर व्हाट एंड हाउ मतलब मेरा मोड ऑफ प्रेजेंटेशन मैनर मोड ऑफ प्रेजेंटेशन मेरा किवें होएगा दैट इज़ योर हाउ सो ये तुहाडा हुंदे 6 ग्रेड हेल्पर्स जो तुहाडे 10 ग्रेड हेल्पर्स ने उदां ही तुहाडे 6 ग्रेड हेल्पर्स ने बस उन्होंने तुहाडे एक क्वेश्चन फॉर्म भी तुहानूं दसदा कि की तुहाडे हेल्पर्स हो सकते लास्ट कम्स टीम प्रेजेंटेशन दैट इज़ टीम प्रेजेंटेशन का मतलब कि एक थोड़े ग्रुप ऑफ पर्सनस तुहानूं प्रेजेंटेशन इकट्ठे दे रहे सो ये की होंगे है कि फ्यू टिप्स की ने प्रेजेंटेशन देने जो कोलैबोरेशन ना हो ठीक है क्योस क्रिएट ना हो ग्रुप प्रेजेंटेशन की फ्यू टिप्स ने पहला की है take special care to plan the presentation to determine the sequence of the presentation as well as the context of each team member's part that means ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਅਰ ਦੇਖੋ ਕਿ कौन कौन की प्रेजेंटेशन देगा तो कि की टर्न है की सीक्वेंस होगा तो पता होना चाहिए नेक्स्ट ग्रुप्स शुड प्लान फॉर अ फिजिकल आस्पेक्ट और प्रेजेंटेशन टू ठीक है फिजिकल आस्पेक्ट मतलब कौन कितने बैठेगा कि दिन कि बाद है तो ये चीज़ पता होनी चाहिए सो फिजिकल स्टेजिंग इज इंपॉर्टेंट एज वेल एज टीम मेंबर्स शुड नो वेयर टू सिट एंड स्टैंड सो अटेंशन शुड क्लोज ऑफ द प्रेजेंटेशन इज अ स्पेशली स्ट्रैटेजी दैट मीन्स कदों आप प्रेजेंटेशन क्लोज किवें करनी है तो कौन किवें करेगा कौन क्लोज करेगा ये भी आप चीज़ ध्यान रखनी है एंड लास्ट पॉइंट टीम शुड नॉट ओवरलुक द नीड टू प्लान फॉर द रिहर्सल टाइम कहते ये तो बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है कि रिहर्सल जब तक नहीं करोगे तब तक ਆਪਾਂ फाइनल नहीं दे पाओगे बिकॉज रिहर्सल सानू पता लग जाएगा कि आप किवें प्रेजेंटेशन देनी है सो दैट इज़ योर टीम प्रेजेंटेशन लास्ट टॉपिक कम्स योर सेमिनार प्रेजेंटेशन दैट मीन्स सेमिनार इज मोर इनफॉर्मल दैन अ मीटिंग और अ कॉन्फ्रेंस या मीटिंग नालों इस सेमिनार की होंदा है इनफॉर्मल वे होंदा है अ सेमिनार इज हेल्ड विद इन ऑर्गेनाइजेशन सेमिनार इज अ फॉर्मल गैदरिंग ऑफ पीपल हु हैव assembled together to exchange views and experience with one another on a specified topic so they are saying कि जो मीटिंग या कॉन्फ्रेंस आप रखते हैं ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਨਫॉर्मल वे की है ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਦਿਨ ਹੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਂਬਰਸ ਉਹ ਗੈਦਰ ਹੁੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਟੌਪਿਕ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੋ सक्सैसफुल सैमिनार डिपेंड्स लार्ज ऑन दी मैंटल एटीट्यूड्स की होने चाहिए वैल प्लान होने वैल प्रिपेयर हो ऑब्जर्व द पार्टिसिपेंट्स कि पार्टिसिपेंट उन्होंने प्रॉपरली देखो स्पीक एट द राइट टाइम ये नहीं कि दूसरे तुम कट करके बार बार बोल रहे नो सो की हो रहा है उस अपने टाइम पे राइट टाइम पे बोलो कंट्रोल योर इमोशंस ठीक है सो बी ब्रीफ बी अकोमोडेटिंग दैट मीन्स इकट्ठे सब लैके बोलना आप सो ऑल इज अबाउट योर बिजनेस सेमिनार प्रेजेंटेशन सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर प्रेजेंटेशन स्किल्स की आप अगर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो की स्किल्स रिक्वायर्ड है दैट इज योर